एक इंतहाई सेशन लेकर के आपके सामने आ रहे हैं हमारे कौंसल जनरल ऑफ इंडिया इन सऊदी अरेबिया, जनाब फहद अहमद खान सूरी सर। मैं फहद अहमद खान सूरी सर के बारे में बताना चाहता हूं कि पिछले साल जब हम हज पर थे तो सर वहां पे एज आ कौंसल जनरल ज्वाइन किए हैं और इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से हज के कामकाज को अंजाम दिया है और इसमें बेहतरी लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है क्योंकि जितने भी SHIs हैं इनको कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया के अंडर में अपनी खिदमत अंजाम देनी है, जिसके ओवरऑल इंचार्ज कौंसल जनरल सर हैं। तो बराए करम कौंसल जनरल साहब को बगैर सुने उनकी तमाम बातों को आप नोट करें और उस पर अमल करें ताकि आपका ये सफ़र जो है वो कामयाब हो सके। जी, तो मैं कौंसल जनरल सर से गुजारिश करूंगा कि बराए करम वो हम लोगों से कनेक्ट हों। Good afternoon, everyone. Assalamu alaikum, namaste. I hope you are able to hear me. Yes, sir. We are. You are audible, sir. Acha. So I will have my conversation and a short presentation with all the SHIs in bilingual mode. मैं दोनों इंग्लिश हिंदी में बात करूंगा so that आप लोगों को जो है the message is crystal clear, आप लोग समझ पाएंगे exactly हम क्या बोल रहे हैं. Because right at the beginning, let me at the outset mention this कि the role of SHIs is very crucial in the delivery of our services. आप जो है एक फलक्रम है जिसपे एक्चुअली जो पिलग्रिम का वेलफेयर है ऑपरेट करता है. So क्योंकि आप लोग वो इम्पोर्टेंट कड़ी है which actually connects the pilgrims to the rest of the Hajj architecture that is set up by the consulate or the Indian Hajj mission, that is. So ये याद रख लीजिए आप extremely important role play कर रहे हैं. इसीलिए आपको जो है आपकी अवेयरनेस काफी important है in terms of क्या है whole Hajj process कैसा है. So I have seen the schedule that you have for today training. So I can see that many of the people who have been here, who have worked with us in various desks, who have been coordinators, are going to give you an in-depth understanding of the place, of the process, of the procedures, of your roles and responsibilities. So it's important that you pay attention. आप ध्यान से सुनिए. It's quite crucial कि operational details जो है neglect ना हो. क्योंकि at the end of the day these operational issues or these operational processes and procedures are exactly what that defines a success or a failure. So without any further ado, what I'll do is I will quickly take you through a presentation. Let me share it on the screen first. Acha, please confirm if you are able to see our screen and the presentation. Yes, sir, we can see the screen. Acha. So what we are going to do first is help you understand. आपको जो है broadly यहाँ का architecture, यहाँ के important जो है processes, procedures, the whole Hajj management system. एक बार I'll quickly run you through these things so that उसके बाद आपके specific roles and responsibilities उस पे थोड़ा सा तवज्जो देंगे. To begin with, we would want Excuse me, sir. Sorry to say, आपका जो PPT है वो अभी नहीं आ रहा है. अभी आ रहा है? नहीं sir. You cannot see it? Yes sir, we cannot see. Let me upload this again. अभी दिख रहा है?
Yes, sir. Just now it appeared again. Okay. When I change the slide, can you see it? Yes, sir. Yes, sir. We can. I guess जब मैं full screen कर रहा हूँ तब जो है freeze हो जा रहा है. Let me keep it in this mode only. Okay, sir. अगर कभी भी आपका जो है disappear हो जाए तो हमें बस इत्तला कर दीजिए. जी इंशाल्लाह सर. Okay, so broadly आप एक बार देखिए the scale of our operations. ये मैं आपको हज 2024 के statistics दिखाना चाहता हूँ. हज 2024 में we had 1,75,000 जो है हाजी आए हुए थे. 80% हज कमेटी के थ्रू आए थे और 20% प्राइवेट रूट से आए थे, जियो रूट. So इस बार भी we have same number, but the ratio is different. 70% हज कमेटी के थ्रू and 30% जियो के थ्रू आ रहे हैं. एंड जैसे जो है आपको ऑलरेडी स्पीकर्स ने बताया होगा, दिस इज अ मल्टी मिनिस्ट्री इन्वॉल्वमेंट वाला प्रोसेस. इंडिया के मिनिस्ट्रीज हैं, यहाँ के लोकल जो है सऊदी अरेबिया के मिनिस्ट्रीज भी हैं. इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, हेल्थ, सिविल एविएशन, all these the key ministries are involved in the process. And in Saudi Arabia we have very similar setup. We have the Hajj ministry involved, we have the health ministry involved, we have the civil aviation here involved, we have the agencies which control traffic and everything involved. So the scale is humongous, and the need for coordination amongst various ministries and all is extensive. So इसीलिए इस coordination के लिए on the ground जो है to cater to such large number, we have both our deputy and our own debuted for this purpose. In addition to that, आप लोग हैं जो हम खादिमुल उज्जाज बोला करते थे, जहाँ पे आपने यहाँ पे देखा होगा फिगर 600 प्लस. इस बार आप लोगों को रीडेसिग्नेट किया है as state Hajj inspectors. So we are hoping to have 800 plus of you joining us. And in terms of the services, आप देख सकते हैं कि for Hajj Committee of India Pilgrims, we are responsible for practically everything. क्योंकि उनका accommodation मक्का and मदीना में जो है we contract those services. We look after hiring of transportation, both intercity, airport transfers, Mashair, Azizia मतलब accommodation to Haram and back. 24/7 services चलाते हैं हम. In fact हम एक ऐसे मुल्क हैं जो ये वाली 24/7 Azizia सर्विस चलाते हैं ट्रांसपोर्ट की. You would see that जब आप लोग जो है हाजीज को लेके जाएंगे या उनको असिस्ट करेंगे on their way to Haram, ये ट्रांसपोर्ट का लिंक कितना इंपॉर्टेंट है आप रियलाइज करेंगे उस टाइम पे. इन एडिशन टू दैट जो है हम a number of functional desks चलाते हैं for grievance redressal, for pilgrims welfare. बैगेज की एक डेस्क है जो बैगेज इंश्योर करती है. लॉस्ट एंड फाउंड अगर लोग खो जाते हैं या उनकी चीजें खो जाते हैं, उसमें जो है उसके लिए एक अलग डेस्क है. गाइडेंस के लिए हमारा कोऑर्डिनेशन डेस्क है हमारा. एंड देन last year so we had the introduction of Hajj Suvidha app, a dedicated desk for Hajj Suvidha app. And in fact आप लोगों के coordination के लिए भी we used to have HGO desk, now it will be SHI desk. So in terms of services that we provide to the pilgrims, यहाँ पे आने के बाद भी उनको guidance, उनको जो है कोई भी तकलीफ आती है तो medical also, we have a huge medical infrastructure as you can see with the medical mission. Last time हमने 13 branch dispensaries चलाए थे. We had 3 hospitals in Makkah and 1 in Medina. In addition, we run ambulance services. Despite our challenges in Mashair and the entire Mashair zone, we usually have our camp dispensaries in Mina. In addition to that, female pilgrims के लिए, ladies without mahram के लिए हमने specifically dedicated एक hospital रखा था. So you would see that we have extensive service offering to our pilgrims. So आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि क्या क्या services offer करते हैं, so that जब pilgrim आपके जब हाजी आपको जो है आके if they tell you कि भाई जो है देखिए फलाना हमें दिक्कत है आप प्लीज सॉल्व कीजिए, तो यू शुड नो कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको कौन से डेस्क के पास जाना चाहिए. इज दैट सर्विस बीइंग ऑफर्ड बाय अस और नॉट. इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स अगर आप देखें तो बिल्डिंग्स का जो है पिछली बार
140,000 जो हज कमेटी के पिलग्रिम्स थे, इनको जो है accommodate करने के लिए we had more than 480 buildings in Makkah alone, and quite a lot of buildings in Medina. Medina में क्योंकि 8 days ही phase होता है, so the peak is not equal to the overall pilgrim capacity. So इसकी जो है 1/3 capacity is usually the peak. So depending on that number of buildings decide होते हैं. जैसे मैं कह रहा था, buses, we had 600 plus buses commuting between accommodation and haram. So it's such a large operation, and that too this works 24/7. तो इसके coordination के लिए हमारा एक dedicated transport desk होता है. So you will be liaising with each one of these desks. In terms of the scale of baggage that you handle, 250, so essentially आप देख लीजिए कि 40,000 हाजी आ रहे हैं. हर हाजी अगर 2 पीस बैगेज लेके आ रहा है, तो we are talking about almost 250,000 plus baggage that has to be transported during this entire operation, and then the number of flights, of course, as you can see. So it's in essence, in a nutshell, this is a huge exercise. It involves a lot of coordination. So for actual effective delivery of services, we would rely heavily on you. You are that link that connects this particular system जो आप architecture यहाँ पे देख रहे हो screen पे, to the pilgrims. Are you able to see this slide? Can someone confirm? I have just moved from one slide to another. I hope you are able to see this. So it is okay. Okay. So now these are, this particular slide is actually meant for both the pilgrims and SHIs, because you are part of the group which travels together. So one thing is absolutely crucial, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि जो भी schedule हज कमेटी जो है बना के दे, आपको उस schedule से जो है you have to totally follow that schedule. And जब आप अपना खुद का बैगेज भी जो है रेडी कर रहे हैं, please kindly check the guidelines in terms of hand baggage, check-in baggage, what can be kept inside, what cannot be kept inside. So our suggestion would be, when you have those interaction with the pilgrims, जब आपको वहाँ पे pilgrims के साथ कोई training session हो या कोई interactive session हो before your departure, you have to convey these guidelines to the pilgrims as well. And like we give this guidance to the pilgrims ki Hajj involves a lot of walking. The walking in your case will be even more, क्योंकि आपको जो है ना सिर्फ हाजियों के साथ रहना है, जब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी आपको काफी जो है भागदौड़ शायद करनी पड़े. वहाँ पे ऑन द ग्राउंड हाजियों की कुछ जो है कुछ लोगों को स्पेशल केसेस की हेल्प जहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तब आपको you have to step up and put in that extra effort. So you have to be physically more active than the regular haji there. So इसीलिए please, in case you still have more than a month to go, आप अभी से जो है अपनी endurance and general health पे काम कीजिए, because that will help you be in a good shape to take on these responsibilities during Hajj. And क्योंकि large volume of our interaction with the Hajis has now shifted to the digital space through the Hajj Suvidha app and others. It's extremely important कि जो है आप लोगों को Hajj Suvidha app use करना आना चाहिए. You have a session to, I think during the training session that will be conducted by the BISAC team which is managing the app. तो आप उस app को अच्छे से ध्यान से देखिए, आपका particular login से आप क्या कर सकते हैं, कैसे रिसीव, अगर आप जब आपको जो है हाजियों की कंप्लेंट आती है उस ऐप पे, आपका रोल क्या है, आप उसको कैसे असाइन कैसे आप उसको जो है एस्केलेट कर सकते हैं टू द कंसर्न डेस्क, ये सब आपको सीखना बहुत जरूरी है. एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, हज सुविधा ऐप तो चलिए आपको वो तो उसको आपको पूरी करनी है. सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपका फोन यहाँ पे हमेशा एक्टिव रहना चाहिए.
बिकॉज अगर आपका फोन एक्टिव नहीं है एंड इफ यू आर नॉट कम्युनिकेबल, तो जो है वो इम्पोर्टेंट कड़ी टूट जाएगी बिटवीन द कॉन्सुलेट, बिटवीन द हज मिशन एंड द हाजीज। तो ये एक्सट्रीमली क्रूशियल है। आप प्लीज याद रख लीजिए, आपके फोन जो आप लेके आ रहे हैं अच्छे कंडीशन वाले जो है लेके आइए, एंड मेक श्योर दे आर ऑलवेज एक्टिव। सो इन जनरल अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखना है, यहाँ पे क्या है, द सीजीआई एट द कॉन्सुलेट लेवल दैट इज हेडेड बाय मी, कॉन्सुल जनरल। देन आई हैव अ डेडिकेटेड कॉन्सुल हज who is actually responsible for all the hajj matters, और उनको रिपोर्ट करने वाले दो इंचार्जेस होंगे, मक्का में एक एंड मदीना में एक, एंड दोनों जगह जो है सीजीआई स्टाफ भी रहेगा। इन एडिशन टू दैट आपको दोनों जगह ये वाला जो डेप्यूटेशनिस्ट का स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं और डेस्क का जो सिस्टम देख रहे हैं, ये भी आपको कॉमन मिलेगा वहाँ पे। सो आपको मक्का में भी कोऑर्डिनेटर्स मिलेंगे, मदीना के भी कोऑर्डिनेटर्स, जो भी मदीना में पोस्ट आप लोग जब रहेंगे वहाँ पे भी आपको कोऑर्डिनेटर दिखेंगे, एएचओ दिखेंगे और हज असिस्टेंट दिखेंगे। तो इन सिमिलर मैनर हमने जो डेस्क बनाए हैं दोनों जगह ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर डेस्क, बट डिपेंडिंग ऑन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इन मक्का मशायर वगैरह, तो कुछ अलग एक्स्ट्रा डेस्क भी आपको दिखेंगे। ब्रांच ऑफिसर्स आपको कॉमन दिखेंगे, कोऑर्डिनेशन डेस्क आपको जो है सेंट्रली यहाँ पे दिखेगा, एंड देन यू विल हैव बिल्डिंग वेलफेयर डेस्क विच इज वेरी वेरी क्रूशियल, क्योंकि बिल्डिंग रिलेटेड जो भी दिक्कत आती है, जो भी जो है कंप्लेंट्स रेज होते हैं, यू विल हैव टू फॉलो अप विद दिस डेस्क टू इंश्योर कि वो जो भी कंप्लेंट्स है वो रिजॉल्व हो जाए ऑन टाइम। सिमिलरली यू विल हैव अ बैगेज सेल, बहुत सारी कंप्लेंट्स आपको बैगेज की आएंगी, जैसे सी बैगेज आपको ये भी आपको पिलग्रिम्स को जो है सेंसिटाइज करना पड़ेगा जब आप उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया से, कि यहाँ पे लैंड होने के बाद उनके बैगेज एक्सेप्ट फॉर हैंड बैगेज जो एक्चुअली चेक्ड इन बैगेज है वो अलग से आएगा, ठीक है, वो उनके रेस्पेक्टिव रूम्स में बिल्डिंग्स में पहुंचा दिया जाएगा। सो दे डू नॉट हैव टू पैनिक, ये आपको बोलना बहुत जरूरी है। सो अकॉर्डिंगली एंड ये जब तक उनको पहुंचेगा कभी कभी कुछ घंटे लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ द बैगेज इज हैंडल्ड बाय द एयरलाइंस एंड द ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी। तो इसीलिए आपको ये हिदायत देनी चाहिए कि जो हैंड लगेज में दे शुड कैरी दैट मिनिमम क्लोथिंग, जो उनको अगर सपोज कोई डायरेक्ट जद्दा लैंड कर रहे हैं और उनको उम्रा पे जाना है तो एंड आपको सामान नहीं है, तो उनके पास जो है वो नेसेसरी सामान होना चाहिए इन देयर हैंड बैगेज दैट एनेबल्स देम टू ट्रैवल। मेडिसिन, अगर वो कोई मेडिसिन वगैरह लेके आ रहे हैं, प्लीज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दे शुड कैरी द प्रिस्क्रिप्शंस आल्सो, एंड आप लोग गाइडलाइंस भी चेक कर लीजिए कौन सी मेडिसिन यहाँ पे बैंड है, क्योंकि इस पर्टिकुलर वायलेशन पे काफी लोग जो है यहाँ पे अरेस्ट हो चुके हैं, दे आर स्टिल इन prisons, their cases are being are under trial also। तो ये extremely important है कि आप हाजियों को ये कन्वे करें कि मेडिसिन ध्यान से जो है अगर एसेंशियल मेडिसिन उनके लिए जो अगर वो कैरी कर रहे हैं तो उसका प्रिस्क्रिप्शन के साथ देखें। सो बैगेज में ये इम्पोर्टेंट हिदायत है आपको कि आप प्रैक्टिकली उनको समझाएं कि क्या बैगेज क्या आप उनको पैक करना चाहिए in terms of their requirement, immediate requirement and their expectations की checked in baggage थोड़ा सा लेट आएगा, that should be clearly said and it should come, there should not be any panic, and once that baggage reaches that particular building, you should have a mechanism to disseminate that information। आप हाजियों को तुरंत जो है एक आप establish कर लीजिए, once you it is very important कि आप जब हाजियों से आपको जब असाइन कर दिया जाएगा एक ग्रुप ऑफ हाजीज, आप उनसे राब्ता एस्टैब्लिश करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और आप अपना एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन भी बना लीजिए इनसे, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आपको कन्वे करनी है, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हम जो है हाजियों को कन्वे करना चाहते हैं, नॉट जस्ट थ्रू द ऐप, नॉट जस्ट थ्रू आवर ब्रांच ऑफिसर्स, बट ऑल्सो थ्रू द एसएचआईज। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप ही हमारी वो फाइनल कड़ी है जो डोर टू डोर या पिलग्रिम टू पिलग्रिम बात मतलब फ्रॉम अस टू द पिलग्रिम वाली बात जो है आप डायरेक्ट पहुंचा सकते हैं। तो आपको खुद का एक कम्युनिकेशन चैनल विद द पिलग्रिम हमेशा ओपन रखना चाहिए, एंड सिमिलरली जैसे बैगेज एडवाइजरी वगैरह आपको देनी चाहिए।
for you to get information from us, of course will be information desk. All these desks will be available. In fact, your own desk will also help you get the information. जो हमने state hajj inspector desk भी इस बार जो redesignate किया है, that desk will be your primary conduit to obtaining lot of information. सिमिलरली आप दूसरे डेस्क का भी रोल समझ लीजिए. मिसप्लेस बैगेज सेल क्या होता है, हरम टास्क फोर्स क्या होती है, जो है मूवमेंट डेस्क जो है मक्का टू मदीना, मदीना टू मक्का वाली, ये क्या होती है, जनरल वेलफेयर में क्या होता है, और जो हम एक्स्ट्रा टास्क फोर्स क्रिएट करते हैं मशायर के टाइम पे, मीना के टाइम पे, जैसे जमारात टास्क फोर्स है, इन सब का रोल आपको जानना बहुत जरूरी है. अच्छा, ये अगर आप देख लीजिए, यही एक्सप्लेन करता है कि हाउ यू आर लिंक. आप अगर देख रहे हैं जो आपके ये आर्किटेक्चर में you have been placed between all the operational architecture that we have created, the branch office and everything, and the mechanism that the pilgrims have. In fact, ये कोई ऐसे escalation in the sense ये 1, 2, 3 step ऐसे follow होना ये कोई लाजमी नहीं है. You would see that probably in most cases pilgrims जो हैं ये तीनों रूट अप्लाई कर पाएंगे. वो शायद ब्रांच भी चले जाएंगे, हज सुविधा में भी रेस कर देंगे और आपको भी बोल देंगे अगर उनको कोई दिक्कत हो. सो दैट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल. सो जो है इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू टू इमीडिएटली ट्रांसमिट दैट इंफॉर्मेशन एंड फॉलो अप आल्सो ऑन रिड्रेसल. अगर आपको दिख रहा है कि हाजियों ने कुछ बिल्डिंग के बारे में कंप्लेंट किया, 12 घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, सो आप भी अपनी तरफ से एस्केलेट कीजिए to the corresponding branch and the functional desk. इसीलिए I am emphasizing that you have to develop a complete understanding कि each one of these desks करता क्या है. And इन सब में आपको एक और चीज भी जाननी है कि यहाँ पे जो भी सर्विसेज पिलग्रिम्स को दिए जाएंगे वो इंडियन हज मिशन जो है, our role is to मतलब हम जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सर्विसेज following the standard processes, but the actual service delivery is done by these providers जो Saudi entities हैं. तो it's very essential कि आप भी understand करें some of the limitations that we face or the challenges that we face are primarily because the service delivery is by the Saudi service entities. तो अगर आप लोगों को लगता है यहाँ पे कि कोई Saudi service provider has not done his job, उसको ये करना चाहिए था, उसने ये नहीं किया, तो ये याद रख लीजिए. इस स्लाइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए वो सऊदी हेल्पलाइन नंबर जो 1966 दिया गया है. यू शुड एडवाइस एंड आप भी पिलग्रिम्स के बिहाफ पे ये डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल करके अपना कंप्लेंट रजिस्टर करना चाहिए कि भाई फलाना जो है बिल्डिंग में ये प्रॉब्लम है, यहाँ के बिल्डिंग मालिक ने ये जो है इसको रिजॉल्व नहीं किया इस कंप्लेंट को. बट मेक श्योर कि जब आप ये कर रहे हैं तो you should be entirely confident कि वो बात सही है. Factual correctness is also, veracity of facts is also your job. जैसे आप कहीं पे भी करते हैं. In fact, whenever we deliver services and we receive grievances and all, the first step is to check the genuineness of the complaint and verify for yourself कि whether that exists or not. तो उस हिसाब से आप जब verify कर लेंगे तब प्लीज उसको सऊदी हेल्पलाइन पे escalate कीजिए डायरेक्टली. So this is very important for you. Acha, so amongst the service providers that you would see, Saudi service providers, जो service provider company for Mashair and the whole overall coordination है, SPC जो कहलाता है, इसका रोल बहुत ही crucial है. In fact, जो है you would see that during core Hajj period जब हम मीना में होते हैं, वहाँ तो टोटली यही सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कैंप यही मैनेज करते हैं, वहाँ का ओवरऑल जो है कैंप में जो फैसिलिटीज हैं, कैंप में जो है आपको जो खाना मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन जो अरेंज होते हैं, एवरीथिंग इज अंडर देयर कंट्रोल. सो इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. और जब आप यहाँ पे आएंगे वी विल डेफिनेटली हैव दीज मीटिंग्स बिटवीन these service provider ने भी क्या किया है, they will have various service centers. ये service centers जो हैं ये लिंक हैं directly to the मीना कैंप. so ये service center के head जो हैं ये जो है
they are responsible for the pilgrims assigned to that particular camp. Every camp in turn is assigned or linked to a set of pilgrims and the buildings where they are residing uh, in in our accommodation units. तो जब हम उनको assign करते हैं buildings, तो ये buildings भी in turn जो है are linked to our branches. So this entire architecture is quite interlinked. तो इसीलिए आप लोगों के लिए हम ये करेंगे when you are here, we will connect our deputationists जो branches वगैरह head करते हैं and the deputationists who will be deployed for camp coordination with all of you. We will have their meetings, we'll try and have their meetings directly with the service center heads, and जब आप लोग भी आ जाएंगे, we'll try and see that functional coordination जो है के लिए हम आप सबके details इन सर्विस सेंटर हेड्स के साथ शेयर करें और इनकी टीम्स का जो एक्चुअल कोऑर्डिनेशन है वो कोऑर्डिनेशन के लिए ऑन द ग्राउंड हम आपकी मीटिंग फैसिलिटेट करें. बट द ओनली चैलेंज दैट यू मे फेस इज लैंग्वेज बैरियर, बट वी हैव आस्क्ड फॉर मैक्सिमम इंग्लिश स्पीकिंग पीपल. तो आपको एटलीस्ट एक कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज में बेसिक फंक्शनल जो है इंग्लिश में रैपो एस्टैब्लिश करना पड़ेगा ऑन द ग्राउंड. So this is very crucial, क्योंकि as you can see, not just for Hajj period, जहाँ पे इनका role is totally there in terms of being overall responsible. Service provider also takes care of lot of other activities, including जैसे एक आपने सुना होगा last year एक कार्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, उसका नाम नुसुक है. ये नुसुक कार्ड in a sense हज के लिए एक टाइप का पासपोर्ट है. इसके बिना आप हज जो है यहाँ पे करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. सो ये नुसुक कार्ड के डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो हैपेंस थ्रू द सर्विस प्रोवाइडर कंपनी. तो इनके साथ ये कोऑर्डिनेशन, ये तालमेल बहुत जरूरी है. एंड प्लीज एक हिदायत जो है आपको पिलग्रिम्स को देना है कि इस नुसुक कार्ड को बहुत संभाल के रखना है. एंड व्हाट वी आर नाउ बीइंग टोल्ड इज इसको जैसे आप इकामा या रेसिडेंस परमिट यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं या पासपोर्ट प्रोड्यूस करते हैं when you are on the streets और परफॉर्मिंग योर रिचुअल्स या हरम में है या कहीं पे भी, तो यहाँ पे इस साल शायद ये लोग इंसिस्ट करें कि जब भी अथॉरिटीज पूछें हाजी से कि भाई आप अपना नुसुक कार्ड दिखाइए, शायद इनको नुसुक कार्ड हम अपने पास हर हाजी को अपने पास हर टाइम पे रखने की जरूरत पड़ सकती है. वी विल कंफर्म दिस क्लोजर टू द डेट, बट इनको ये जो है बड़े हिफाजत से इस कार्ड को संभाल के रखना है. तो जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस कार्ड्स में सर्विस प्रोवाइडर का रोल है. इनफैक्ट जब आप यहाँ पे वेलकम करेंगे, वो व्हेन यू अराइव, आप हाजी जब यहाँ पे आएंगे, तब immediately you would see that service provider would be the first Saudi entity invariably that they would meet here, because यही लोग बिल्डिंग में अराइवल ऑर्गेनाइज करते हैं. एंड देन they will their role in terms of supervising the accommodation or being that interlocutor for us has also been introduced this year. तो accommodation के readiness में या accommodation पे भी आप लोग शायद इनके जो है इनके जो है deputed staff को देखेंगे. In addition to that, ये खुद भी अपने service centers almost co-locate करने वाले हैं हमारे branches के साथ. So that will be another जो है advantage, because आप लोग directly भी then you can on behalf of pilgrims raise this issue with these service centers. So as you can see, lot of services, delivery of services and complaint resolution goes through the service provider company. तो इनके साथ अच्छा तालमेल जो है रखना आपके लिए भी बहुत जरूरी है. So once you are here, this will also form part of your practical training कि करना क्या है, आपको कैसे जो है सऊदी एंटिटीज के साथ भी रेस करना है. सो इट विल नॉट जस्ट बी कि आप आए और सिर्फ ब्रांच को या कहीं फंक्शनल डेस्क को बता दिया. आपका एक और रूट है to raise this to the service Saudi through the Saudi helpline, and also to take it up with the concerned service provider company's service center. So basic जो है मूवमेंट आपको शायद आप लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया गया हो, बट लेट मी जस्ट रीइटरेट. ये देयर आर हाजी जो है इधर जद्दा एयरपोर्ट पे आते हैं या मदीना में आते हैं.
जो जेद्दा एयरपोर्ट में आते हैं, यहाँ पे दो टर्मिनल्स हैं, एक तो जेद्दा हज टर्मिनल है और दूसरा टर्मिनल 1 है। अगर आप उन हाजीज के साथ आ रहे हैं जो जेद्दा हज टर्मिनल में आ रहे हैं, तो आप सीधे बस में जाएंगे मक्का एकोमोडेशन में, और मक्का एकोमोडेशन में आप वहीं पे रहेंगे काफी दिन तक। ये पूरा हज जब तक कोर हज पीरियड मशायर कंप्लीट नहीं हो जाता, तो आपका मक्का एकोमोडेशन से हरम जाने का जो डेली का कम्यूट है वो बस के थ्रू होगा। बस पॉइंट सेटअप किए गए हैं, ट्रांसपोर्ट डेस्क भी आपको बता देगा कहाँ से कौन नजदीक वाला बस स्टॉप कौन सा है आपका। आपको ट्रांसपोर्ट कार्ड्स भी दिए जाएंगे, सो मतलब पिलग्रिम्स को भी दिए जाएंगे, आपके पास भी रहेंगे। सो वो वाला जर्नी तो आप समझ ही जाएंगे। सो मशायर में अगर आप देखें, ये तो आप जानते ही हैं, पहले मीना पहुंचते हैं हम, फिर मीना से अरफात का मूवमेंट है, अरफात से मुजदलिफा है, मुजदलिफा से जो है जमरात वाला रमी वाला जो है स्टेज है, उसके बाद आप वापस मक्का एकोमोडेशन पहुंच जाते हैं। फिर कुछ दिन के बाद जैसे रूट खुल जाए एंड शेड्यूल के हिसाब से आप मदीना में जाते हैं। मदीना में आप 8 दिन रहते हैं, 40 नमाजें अदा करने के बाद आप वहीं से जो है मदीना में जहाँ आपकी रिहाइश है वहां से सीधे एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से बैक इन इंडिया। तो ये जो है ब्रॉडली आपका जो स्टे है 40-45 डेज, ये फ्लो आपका रहेगा फॉर ऑल दोस हु आर अराइविंग इन जेद्दा। अच्छा, जेद्दा में जो मैंने दो टर्मिनल्स की बात की थी, अगर आप टर्मिनल 1 पे आ रहे हैं, एक डिफरेंस ये है कि आप डायरेक्ट बस में बैठ के वहां से सीधे मक्का एकोमोडेशन नहीं पहुंचेंगे। आप वहां सऊदी अथॉरिटीज ने मैंडेटरी किया है कि जो टर्मिनल 1 पे आ रहे हैं उनको फिर भी जो है बैगेजेस में बैगेजेस खुलते हैं, कई सूटकेसेस जो हैं उसकी वजह से डैमेज भी होते हैं, एंड काफ़ी कंप्लेंट्स आती हैं कि खोल दिया गया मेरा सामान, कुछ चीज़ें इसमें से चली गई हैं, गुम हो गए। सो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए प्लीज़ टेल देम कि आपको आप जमजम नहीं पैक कर सकते अपने बैगेजेस में। जमजम आपको इंडिया में ऑलरेडी वो इंतज़ाम अलग से हो चुका है, आपको इंडिया में ऑन अराइवल जमजम मिल जाएगा। सो दे शुड नॉट and you should also not pack any zamzam in your baggages. बाकी इन टर्म्स ऑफ जो है एग्जैक्टली आपके आने पे क्या होगा जब आप अराइव करेंगे एयरपोर्ट पे, you will see that and this is what you need to tell the hajis also. आप आएंगे, आपको जो है पासपोर्ट इमिग्रेशन पे देना होगा, वो फिंगरप्रिंटिंग बोलेंगे। so they have to you know please provide their fingerprints, कस्टम्स का चेक होगा, एंड देन उनके बैगेजेस उनसे जो है ले लिए जाएंगे फॉर ट्रांसपोर्ट सेपरेटली, जो मैंने बताया आपको। और एरिया में एंड वहीं से बसेस रेसिडेंस पे लेके जाते हैं। एक चीज पे आपको जो है वी ऑल सेंसिटाइज किया चाहिए। इन सम केसेस व्हाट हैपेंस इज, कुछ जो है हमारे हाजी यहाँ पे पहले भी शायद रह के गए होंगे, सब अगेंस्ट कोई केसेस जो है पेंडिंग होंगी यहाँ पे, तो ऐसे लोगों को जो है ऐसे लोगों को इमिग्रेशन में दिक्कत हो सकती है, दे मे नॉट इवन बी परमिटेड। तो ये जो है आप लोगों को इसकी जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम पे तो ये भी एक केस है जो हो सकता है। एंड बाकी तो ये जो हमने बताई है आपको क्या होगा हज टर्मिनल पे और टर्मिनल 1 पे आपको नुसुक ना, ये हज का पासपोर्ट है, ये इतना समझ लीजिए कि ये हज के लिए पासपोर्ट है। इसके बिना आपको जो है कैंप में, मीना में, और इनफैक्ट लास्ट ईयर जिन हाजियों के पास जो एक्चुअली पूरे जो है हज कमेटी के रूप से आए थे, सब कुछ उनके पास था, सिर्फ नुसुक कार्ड नहीं था, तो उनको काफ़ी दिक्कतें हुई। इनफैक्ट उनको तो जो है पिक करके, पुलिस पिक करके जो है यहाँ पे जद्दा या कहीं पे छोड़ देती थी। तो इसीलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप लोग जो है अपने हाजीज को बताएं कि भाई ये आप किसी भी हाल में नुसुक कार्ड को खोना नहीं है, और अगर खो दें तो ठीक है, ये वो मोहल्ले अभी मतलब सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो हमने आपको बताया कि वो वेलकम करते हैं एंड पहला उम्रा भी फैसिलिटेट कराते हैं। एंड फाइनली जो है आपके यहाँ बैगेज का जो मैंने जिक्र किया था कि बैगेज वो करस्पॉन्डिंग बिल्डिंग में आ जाता है। जिन केसेस में और केसेस में जहाँ बैगेज कहीं दूसरी बिल्डिंग पहुँच गया
तो आप जो है कंसर्न बैगेज डेस्क से चेक करके इसको सॉर्ट आउट कीजिए और हाजियों को जो है तुरंत इत्तला कर दीजिए कि भाई आप इसके बात नहीं है, उनको बैगेज उनका तुरंत मिल जाएगा। तो अगर वहाँ पे आप एक चीज़ आपको ज़रूर बतानी होगी उनको कि बिल्डिंग्स वगैरह जो हैं जो सेलेक्ट की गई हैं ये रेगुलर होटल्स की तरह नहीं है, ये स्पेशली जो है हज पर्पजेस के लिए इनको परमिशंस मिलती हैं जो है। हम अक्सर सुनते हैं हाजी आने के बाद बोलते हैं ये देखिए ये रूम में हमें जो है ज़्यादा कैपेसिटी से रुका दिया गया है, ये हज कमेटी की गलती है या कॉन्सुलेट की गलती है। बट आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि हर रूम की कैपेसिटी जो है सऊदी लॉ के हिसाब से डिफाइन होती है, ठीक है। तो जो आप देख रहे हैं वो रियल पिक्चर्स हैं from amongst the accommodations that have been selected last year। तो अगर आप देख रहे हैं ये शेड रूम्स होते हैं, बाथरूम भी शेड होते हैं। इनफैक्ट जो रेशियो दिया गया है बाथरूम का हज गाइड में भी और हज पॉलिसी भी आपने अगर देखा हो या गाइडलाइंस में देखा हो कि 1:12 का रेशियो है कि हर 12 हाजियों के लिए एक बाथरूम का रेशियो। किचन भी जो है हर 30 हाजियों के लिए एक किचन है। एंड ये भी जो है इट्स नॉट स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया, ये जितना हो सके पॉसिबल किचन को करने की गाइडलाइन है। स्पेशली किचन के मामले में ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। काफ़ी हाजी आके शायद आपको कंप्लेन करेंगे, आपको उनको तसल्ली से इत्मीनान से जो है समझाना पड़ेगा। प्लीज़ दिस इज़ एन अंडरलाइन प्रिंसिपल कि आप हाजियों को जब भी प्लीज़ एक्सप्लेन करें अपना जो है पूरे एहतराम से रेस्पेक्ट से जो है you should explain to them and at no point you should be raising your voice against the pilgrims। जो भी अगर individually अगर हाजी misbehave करते हैं आप प्लीज उसको if you can record those things and report it to your desk, जो faithfully हम फिर हज कमेटी के साथ रिपोर्ट कर देंगे। सो बट इन एसेंस आप देखेंगे कि बहुत सारे कंप्लेंट्स एकोमोडेशन रिलेटेड होते हैं जिसमें बेसिकली सऊदी अप्रूव्ड बिल्डिंग्स ही हम लोग हायर करते हैं। तो बावजूद इसके कंप्लेंट्स आती हैं, यू हैव टू एक्सप्लेन टू देम कि दीज आर selected from among Saudi approved buildings। और किचन वगैरह के केस में तो आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि किचन तो बाई डेफिनेशन यहाँ पे ज्यादातर बिल्डिंग्स में होता नहीं है। हम ही कुछ रेयर मिशंस हैं जो किचन वाली बिल्डिंग्स चूज करते हैं। एंड यहाँ के लोकल अथॉरिटीज मेड इट रियली डिफिकल्ट to have these buildings separated primarily from security concerns, we understand that। तो इस पे जो है इसको नजर में रखते हुए ये बताना बहुत जरूरी है हाजियों के लिए कि यहाँ पे टीम वाला जो सिस्टम एटलीस्ट फैसिलिटेट कर रहे हैं, इट इज अंडर lot of constraints, so that has to be borne in mind। and इसमें उनकी कोई फिर भी दिक्कतें होती हैं तो we will do our best to resolve those on a real time basis। और बाकी जो है ब्रांच ऑफिसर्स तो आपके डिस्पोजल पे है ही है कि फलाना ब्रांच ऑफिसर्स एंड बिल्डिंग वेलफेयर डेस्क कि भाई एकोमोडेशन में ये प्रॉब्लम चल रही है। बट आपको ऑन द ग्राउंड जो रिजॉल्व कर सकता है वो वहाँ का जो हैरिस है, जो लैंडलॉर्ड की तरफ से अपॉइंटेड बंदा है, वो आपका प्राइमरी जो है गो टू हैंडीमैन है। तो आपको उसका नंबर ले लेना बहुत जरूरी है। एंड हम भी कोशिश ये कर रहे हैं कि आपकी रिहाइश जो है आपके हाजियों के साथ ही हो। बट ये परफेक्टली हो नहीं सकता क्योंकि जो आपका रेशियो है पिलग्रिम्स का, और जैसे हाजी बटे जाते हैं एक दो बिल्डिंग के बीच में, तो सारे हाजी जो आप देख रहे हैं वो शायद एक ही बिल्डिंग में ना हो, तो एक से ज्यादा बिल्डिंग में होने के चांसेस भी हो सकते हैं। बट हम कोशिश ये कर रहे हैं कि मैक्सिमम आपको आपके हाजियों के साथ कोलोकेट करें ताकि आप उसी रिहाइश में रहें और इजीली उनको जो है सर्व कर पाएं। ये हो गया अकोमोडेशन रिलेटेड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका प्राइमरीली आप नोटिस करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा कंप्लेंट्स अकोमोडेशन रिलेटेड आए।
बाकी इसके बारे में तो हमने बात की है। इसमें एक ही चीज जो हमने शायद नहीं डिस्कस की है वो है व्हील चेयर्स। बाकी हॉस्पिटल्स, मेडिकल सेटअप, ये सब हमने डिस्कस किया है। व्हील चेयर भी हम जो है हर ब्रांच ऑफिस में या अपने ब्रांच डिस्पेंसरीज में रखते हैं। अगर आपको कोई हाजी की रिक्वेस्ट आती है कि हमें व्हील चेयर दिला दीजिए, तो उसका एक स्मॉल डिपॉजिट अमाउंट है, उसके उसके जो है डिपॉजिट करने पे आपको व्हील चेयर्स भी जो है, यू कैन टेक द व्हील चेयर्स फॉर द पिलग्रिम्स। ये जो है हमने इसका भी जिक्र किया था कि ट्रांसपोर्ट जो हम ये रन करते हैं, ये राउंड द क्लॉक है, 24/7 है। हमारे डेसिग्नेटेड बस पॉइंट्स आप देखेंगे, ये डिफरेंट रूट्स जैसे चलते हैं ना, ट्रेन की जैसे डिफरेंट रूट्स होती हैं बस की, सो इन अ सिमिलर मैनर ये नंबर्ड रूट्स पे चलते हैं हमारे। सो यू शुड बी रियली अवेयर कि आपके हाजियों के लिए क्लोजेस्ट बस पॉइंट कौन सा है, इसकी जानकारी आपको लेना बहुत जरूरी है। सो माय सजेशन, वन ऑफ माय इंपॉर्टेंट सजेशंस टू यू इज, आप जैसे एज सुन एज यू अराइव इन द किंगडम, आपको हम या उससे पहले भी हम कोशिश करेंगे कि आपको बेसिक वर्क गाइड्स दे दिए जाए, ताकि आपको जो है along with a checklist of your basic duties. Basic duties will not be exhaustive in nature, उसके beyond भी आपको duties करनी पड़ेंगी, but आपको हम कोशिश करेंगे कि basic checklist दे दें of work duty and some work guides also, कि भाई with all the relevant information for you. So आप जैसे आए तुरंत जो है उससे वाकिफ हो जाएं, एक बार जो है रेकी भी कर लें जैसे मौका मिले आफ्टर हाजीज गो टू स्लीप, तो उसके बाद से जो है देन यू विल बी वेरी कंफर्टेबल हैंडलिंग देम। एंड ट्रांसपोर्टेशन में एक ही इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट करना पड़ेगा, वैसे ये 24 घंटे चलता रहेगा, जुमा के दिन जो है थोड़े से टाइमिंग रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि कब तक बसेस अलाउड रहेंगी, तो आप लोगों को हाजियों को पहले से ही हिदायत देनी पड़ेगी कि जुमा के दिन पर्टिकुलरली बसेस लेट तक नहीं चल पाएंगी। सऊदी डेडलाइन, सऊदी टाइमलाइंस हमेशा हमें फॉलो करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से आप उनको एडवाइस करें। और जो ये टाइमलाइन नहीं मीट कर पाए और वो आपको ऑल्टरनेटिव्स पूछे, तो आपको इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नियरेस्ट मॉस्क भी होगी आपको, वो आप प्रोवाइड कर दे सकते हैं। बेसिक डूस एंड डोंट्स तो जो है दैट्स क्वाइट एसेंशियल। इसमें जैसे हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग। अच्छा, पुलिस एंड यहाँ पे सऊदी अथॉरिटीज के साथ भाई प्लीज ट्राई, यू शुड एंड द हाजीज अंडर यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर कि यहाँ पे उनके साथ झगड़ा करके, यहाँ का लॉ वायलेट करके जो है वी शुड नॉट इनवाइट अननेसेसरी लीगल कॉम्प्लिकेशंस। तो ये आपको जरूर बताना है। दिस इज वन थिंग दैट आई वुड वांट टू फ्लैग ऑफ। इन टर्म्स ऑफ डोंट्स, हरम में तो जो है ये स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन हाजियों को आपको देनी चाहिए। हरम में कोई भी चीज, अपनी भी चीज जो है गिर जाए, यू कैन गो एंड कंप्लेन बट यू कैन नॉट इमीडिएटली पिक अप आइटम्स। हमारे पास पिछले हजों प्रीवियस हजियर्स में ये एक्सपीरियंस रहा है कि just for picking up something from the floor, people have been, or hajis have been put behind bars. तो ये बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट समटाइम्स ये भी होता है कि जैसे आप कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं कर पाए, अकोमोडेशन की कंप्लेंट थी आपने रिजॉल्व नहीं की, तो हमने ये देखा कि हमारे हाजी जो है इंडिया में जैसे हमारे यहाँ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट है जो अलाउड है, तो यहाँ पे वो सेम फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट अलाउड नहीं है। सो कमिंग ऑन द रोड, धरना देना, स्लोगनेरिंग करना, this has led to local authorities calling us and informing कि this may attract legal provisions। तो इसीलिए ज़रूरी ये है कि आप उनको हमेशा हिदायत दें कि we are, so that is where आपका जो regular communication है is very important। If you are able to assure them कि हम काम कर रहे हैं, इस पे काम हो रहा है, ये resolve हो जाएगा, you are able to diffuse that tension, I think इसकी नौबत ही नहीं आएगी। So बाकी तो आप जो है ये डोंट्स भी आप जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं कि आपको दे शुड बी वेरी केयरफुल विद देयर पर्सनल बिलोंगिंग्स, पैसा स्पेशली, और खुद के इलेक्ट्रिक स्टोव लाके ना चलाएं।
that can lead to a short circuit or electricity problem. And one more very crucial thing, मक्का के बाउंड्री हुदूद पार करके खुद का प्रोग्राम प्लीज ना बनाए बिना जो है कोई परमिशन के, बिना इंफॉर्मेशन के। ये अलाउड है ही नहीं है, क्योंकि पिछली बार ऐसे केसेस हुए हैं एंड इन केसेस में हमने ये नोटिस किया कि उनके साथ उनके जो स्टेट हज इंस्पेक्टर्स थे वो खुद भी ट्रैवल किए हैं। तो ये बहुत ही एम्बैरेसिंग हो जाता है जब सऊदी अथॉरिटीज कॉल यू एंड से कि ये अनऑथराइज्ड ट्रैवल करके चेक पॉइंट पे आप फंसते हैं। सो प्लीज इंश्योर कि आप जो है पिलग्रिम्स को ये हिदायत भी दें और खुद भी जो है उनके साथ भागीदार बन के ना जाएं। और जैसे अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, तुरंत ये इंफॉर्मेशन आप जो है अपने ब्रांच ऑफिस को डिसमिनेट कर दीजिए। मदीना के अकोमोडेशन जो है, क्योंकि वहाँ पे रिहाइश बहुत कम दिनों की है, यूजुअली हमने तो ये नहीं देखा कि ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्पेशली क्योंकि हम सारे अकोमोडेशन यूनिट्स अब मरकजिया में ले रहे हैं, जो हरम से बहुत नज़दीक में है, पैदल जाके आप आ सकते हैं। तो वहाँ पे तो हमने ज़्यादातर नहीं देखा है कि कंप्लेंट्स आई लास्ट ईयर। तो आई एम होपिंग कि क्योंकि दिस ईयर भी सब कोई मरकजिया में ही रहने वाला है इंशाल्लाह, तो जो है इसमें भी कोई इशू होना नहीं चाहिए। बट इसमें भी वहाँ पे हमारे ब्रांच ऑफिसर्स हैं, सेम डेस्क सिस्टम है, तो अगर कोई दिक्कत आती है आप तुरंत जो है रेज कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि मदीना में कोई कुकिंग फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि ये होटल टाइप के अकोमोडेशन हैं, इसमें किचन की इंडिविजुअल किचन की तस्वीर नहीं है। तो आप ये पहले से बता दीजिए कि हाजियों को बाहर से खाना पड़ेगा यहाँ पे। एंड एक चीज मैं बता दूं, बहुत मक्का और मदीना में जो भी एग्रीमेंट के गाइडलाइंस हैं विद लैंडलॉर्ड्स, हम आपको ये अवेलेबल करवाएंगे सो दैट आप चेक कर पाएं कि लैंडलॉर्ड या वो हारिस जो वहाँ पे बिल्डिंग में आपके पास रहेगा उससे क्या एक्सपेक्टेड था, क्या नहीं था। और यही इंफॉर्मेशन हम अपने ब्रांच ऑफिसर से एचओस वगैरह को भी देंगे। मेडिकल सर्विसेज की हमने बात ही की है ऑलरेडी। सबसे इम्पोर्टेंट फेज जो आएगा एंड आपके लिए भी टेस्टिंग फेज रहेगा वो है मीना अरफात वाला पीरियड। यहाँ पे प्लीज आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप हाजियों को इकट्ठा रखें। सी द होल पॉइंट इज, आप जो मैं बोल रहा था, आप वो इम्पोर्टेंट कड़ी हो जो अपने अपने ग्रुप के हाजी को लेके साथ में चलते हैं। तो अगर आप सब इस काम को बखूबी निभा पाए तो ये होगा कि हमारे कोई भी इंसिडेंसेस रिगार्डिंग हाजीज जो है अननोटिस्ड, अनऑब्जर्व्ड या अनअटेंडेड नहीं रहेंगी एंड इट विल बी ए रियली स्मूथ अफेयर। तो आपकी जिम्मेदारी बहुत ही क्रूशियल है। से फॉर एग्जांपल जब हम मीना के लिए मक्का जितने जहाँ पे आपकी रिहाइश है वहां से निकल के मीना जा रहे हैं, इट इज वेरी क्रूशियल कि जो हम टाइमलाइंस आपको बताएंगे कि भाई फलाना टाइम से ये बिल्डिंग में ये हाजीज मूव होने वाले हैं एंड वो स्केड्यूल वहाँ पे बिल्डिंग पे लगाया जाएगा, आपको भी इंफॉर्मेशन इत्तला मिल जाएगी। आप फेथफुली हाजियों को इत्तला दीजिए एंड उनके साथ ऐसे जो है उस मूवमेंट को प्रैक्टिस कीजिए कि अगर बसेस आने में देरी भी होती है, कोई टाइम विंडो, यूजुअली सऊदी अथॉरिटीज हमें एंड सर्विस प्रोवाइडर एक टाइम विंडो देते हैं, बट प्रैक्टिकली अगर ट्रैफिक हो और उस टाइम विंडो में नहीं आता है, प्लीज डू नॉट अलाउ एनी सिचुएशन टू डेवलप कि हाजी आके बाहर बैठ गए हैं, धूप में बैठ गए हैं या वेट कर रहे हैं और उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। प्लीज ऐसे मत इंश्योर कीजिए, एक मैकेनिज्म बनाइए ताकि आप रियल टाइम पे बस आ रही है 5 मिनट में आप सब नीचे आ जाए, वैसा कम्युनिकेशन कर पाए, वैसा कोई मैकेनिज्म क्रिएट करना भी जरूरी है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, आप जो चैनल्स अपने ओपन रखते हैं, तो अगर वो चैनल आप अच्छे से एफिशिएंटली यूटिलाइज करें तो मुझे लगता है कि सारे एपिसोड भी हम कम कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज कि जो मीना में मूवमेंट हो रहा है, एक चीज वेरी एसेंशियल है कि आपको अपने हाजियों को, आपको पहले इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन खुद के पास रखनी है, ये इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करनी है एंड यू शुड इंश्योर कि आपके सारे हाजी बसेस में बैठ जाए।
अगर सपोज आप खुद ही पहली बस में बैठ गए, सी बसेस की कैपेसिटी होती है 45 से 49 और आप डील कर रहे हैं 3 टाइम्स दैट नंबर 150, राइट? तो इस सूरत में अगर आप पहली बस में बैठ गए हैं तो बाकी बचे हुए आपके हाजी बस करेक्ट बस पे टाइम पे बैठ पाए नहीं बैठ पाए आप नहीं बता पाएंगे। सो इंश्योर कि आपके हाजी सारे बसेस में बैठने के बाद आप लास्ट वाली बस में जो है ट्रैवल करें उनके साथ, और जैसे मीना पहुंच जाए फिर एक बार रोल कॉल ले लीजिए कि भाई सब पहुंच गया नहीं पहुंच गया, सबको अपने जो है खैमों में जगह मिल गई नहीं मिल गई है। तो एंड वहां पे राब्ता रखिए हमारे जो भी ऑफिशियल डिप्यूटेड होंगे कैंप में, और सर्विस सेंटर के भी जो ऑफिशियल्स हैं उनसे भी आपको राब्ता रखने की जरूरत है, सो दैट ये एज ए कंबाइंड टीम आपको काम करना है टू इंश्योर कि खैमों में जो है सब बकायदा आराम से पहुंच गए हों, उनको स्पेस मिल गई हो, उनको वक्त पे खाना मिल जाए, और जो है जो भी और उनको तकलीफ है वो दूर हो जाए। सो ये आपका पहला जो है इम्पोर्टेंट काम है। दूसरी बात जो है कुछ लोग जो है बस से ट्रैवल करेंगे मीना से अरफात, कुछ ट्रेन से ट्रैवल करेंगे। तो आप लोगों को आप लोगों को जो है आप लोगों के थ्रू हम लोग जो है मोस्ट लाइकली ट्रेन टिकट्स बांटेंगे। आप लोगों के तरफ की जिन जिन की ट्रेन टिकट्स होगी उनको बांटा जाएगा। इसमें हमने लास्ट ईयर ये नोटिस किया कि से अगर एक बिल्डिंग में half of them are going through train route and half of them are going through bus route, सडनली हमें कंप्लेंट्स आने लगे कि हमें ट्रेन टिकट क्यों नहीं मिली गई, इनको क्यों मिली गई। तो इसीलिए आप लोगों को अपने हाजीज को करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है कि कौन किस कैंप में है, किस कैंप में ट्रेन टिकट की जरूरत है, किस कैंप में बस की जरूरत है। ये इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए और ये आपको समझाना पड़ेगा अपने हाजियों को। तो इसको समझाने के लिए आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। प्लीज be always in touch with our team to get this information. Similarly अदाही कूपन भी हम लोग जब जो है प्रोवाइड करते हैं, and both these things will usually be provided through you. हाँ, मीना में जो है आप लोगों को सबको शायद खबर हो लेस देन 1 स्क्वायर मीटर की जगह मिलती है, which means कि जो है बहुत कम जगह होती है। हमने कुछ एक्सपीरियंसेस ये देखे हैं कि कुछ हाजी हमारे ही हाजी जो है ज्यादा जगह के लिए बगल वाले के जो है जो स्पेस है वो शायद कवर कर लें, तो आपको स्पेस की कंस्ट्रेंट की कंप्लेंट्स आएंगी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको अलर्ट रहना पड़ेगा उस रात पहले दिन जैसे पहुंचे, सबसे अपने हाजियों को इंडिविजुअली आप अपने अपने हाजियों को जो है चेक कर लीजिए सबकी स्पेस करेक्ट है या नहीं है। तो अकॉर्डिंगली वी कैन पिन पॉइंट एंड सी वेयर द प्रॉब्लम इज। जितना आप जो है इंश्योर करोगे कि यू आर इन टच विद द कंसर्न अथॉरिटीज देयर, जो पीपल जो ऑफिशियल एंड स्टाफ रिस्पॉन्सिबल है, और उनसे इंश्योर करें कि जो है जो सर्विसेज हाजियों का मिलनी चाहिए थी वहाँ पे वो मिल रही है। And you immediately communicate all that information from pilgrims to those service center heads. It is very essential. उसी से जो है वहाँ पे solution होगा। सिर्फ जो है हज सुविधा पे इसको पोस्ट करने से नहीं होगा। You have to also go and personally interact with the service center staff members and get it done. So we will come up with an architecture at that time कि escalation matrix कैसे होगा and उसका resolution कैसे होगा। But इतनी हिदायत अपने हाजियों को दीजिए कि वहाँ पे एक्सट्रीम कंस्ट्रेंट्स हैं, स्पेस के कंस्ट्रेंट्स हैं, सैनिटेशन फैसिलिटीज, ये जो है पीक समर पीरियड में होगा तो उस टाइम पे जो है शिद्दत की गर्मी होगी, तो अम्ब्रेला यूज करना या जो है हाइड्रेशन में रहना, ये सब चीजें आपको समझाना बहुत जरूरी है। एंड प्लीज अपने कैंप का लेआउट पहले से समझ लीजिए। वी विल ऑर्गेनाइज a trip for you to the Meena camp spaces much in advance so that आप जो है वहाँ पे खुद ही जो है लॉस ना हो, आपके पास GPS enabled information होगी। Please ensure कि you follow and you help the pilgrims follow that information as well. Similarly अरफात का मैंने जैसे समझाया आपको, ट्रेन का रूट होगा और बस का रूट होगा। तो you should जब वो मूवमेंट होगा you should ensure
कि आपके पिलग्रिम सब जो है, जो ट्रेन में जाने वाले थे, जो ट्रेन में बैठ गए हैं, बस में जाने वाले बस की तरफ चले गए हैं, और उसके साथ आप लास्ट में अपने पिलग्रिम्स का इंश्योर करते हुए पहुंचेंगे। और जब आप ये कर रहे हैं तो प्लीज पहले से ही एनविसार्ज करके वहां पे मीना में अराइवल जो देख रहा है उनसे भी कोऑर्डिनेट करके टच में रहिए टू इंश्योर, टू चेक, टू गेट अ स्टेटस कि आपके खुद के हाजी जो आपसे पहले बस में निकले वो पहुंच गए या नहीं पहुंच गए। सो इसीलिए कम्युनिकेशन देखिए बहुत की इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू नो हु इज ऑन द अदर साइड। मुजदलिफा में आपको मालूम है वहां पे भी जो है वेरी सिमिलर प्रॉब्लम्स है, स्पेशली वहां तो बहुत तादाद में लोग रहेंगे, वो तो ओपन एरिया है, वहां पे सैनिटेशन टॉयलेट की फैसिलिटीज भी बहुत लिमिटेड सी हैं, तो यू विल हैव टू गाइड योर पिलग्रिम्स टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटीज देयर। इसीलिए पहले जब हम आपके लिए जब विजिट अरेंज कराएंगे, प्लीज अंडरस्टैंड कहाँ कहाँ क्या क्या रिसोर्सेस अवेलेबल है, मेंटल नोट बनाइए, अपने जो है फोन्स में फीड कर लीजिए, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू एक्ट। यहाँ पे जमरात के मूवमेंट के लिए हमारी एक टास्क फोर्स भी रहेगी, सो प्लीज इंश्योर कि जो है यू गेट देयर कोऑर्डिनेट्स एंड ट्राई एंड गाइड योर हाजीज अकॉर्डिंग टू द टाइमलाइंस। सो जहाँ तक जमरात में के लिए मूवमेंट है, सऊदी अथॉरिटीज ने डिफरेंट टाइम्स फिक्स किए हैं फॉर डिफरेंट ग्रुप्स, स्पेशली कैंप वाइज होते हैं, तो जो है आप जो है ये टाइमलाइंस के हिसाब से ही अपने हाजियों को लेके जाना है। प्लीज रिमेंबर दिस इज एक्सट्रीमली क्रूशियल। सो उसके बाद जो है तवाफ ज़ियारा में भी जो है आपको ये देखने को मिलेगा कि बहुत ही भीड़ होगी उस टाइम पे। सो कोशिश कीजिए अपने ग्रुप को एक साथ रखने की, एंड एक साथ आप जो है तवाफ कंप्लीट कीजिए, और रिटर्न में जो बस ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं ये पता कर लीजिए कि आपको निकलना कहाँ से है, बसेस होंगी नहीं होंगी, कहाँ से किस पॉइंट से होंगी। उस टाइम पे हमारी ट्रांसपोर्ट टीम विल वर्क वेरी क्लोजली विद ऑल ऑफ यू, तो प्लीज बी इन टच with the transport team, get the right information, get the schedules, get the points from where it can be done, and alternative options भी जो walk करने के options वगैरह भी क्या हैं ये पहले से ही पता कर लीजिए। So उसके बाद तो fairly simple है, आप जो है हम लोग schedule करते हैं, हम we have a transport arrangement for you to take you back from Mashhad Mina to accommodation। उसके बाद आप कुछ दिन रहेंगे एंड जो अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल आप लोगों के डिपार्चर्स फ्रॉम जेद्दा और टू मदीना होंगे। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। बैगेज एडवाइजरी, प्लीज इंश्योर कि आप लोग फेथफुली अपने हाजियों को कम्युनिकेट कर दें, एंड एट द टाइम ऑफ मूवमेंट ऑल्सो जैसे आप हर मूवमेंट कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ये मूवमेंट भी कोऑर्डिनेट करेंगे, टाइमलाइंस आप समझ लेंगे, कम्युनिकेट करेक्टली करेंगे, इन सारे हाजियों को जो है इंश्योर करेंगे कि वो अपने अपने बस में बैठ जाएं। That's it from my side in terms of presentation. बहुत बहुत शुक्रिया सर। नहीं, अगर कोई जो है क्वेश्चंस हैं आपके वगैरह तो यस यू कैन, अभी भी आप क्वेश्चंस एड्रेस कर सकते हैं, बट लार्जली यू विल रियलाइज वन थिंग कि बहुत लोग जो है प्रैक्टिकल आप जब यहाँ पे आएंगे ये एरिया को समझेंगे, अपने अपने डेस्क को समझेंगे, रूटीन को समझेंगे, चेकलिस्ट आप जब आपकी बन जाएगी आप वो चेकलिस्ट देखेंगे, तब आपको यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन एग्जीक्यूटिंग दिस। सो इसीलिए व्हाट आई वुड से इज वंस यू हैव दोस चेकलिस्ट, जब आपके पास ये सब इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो आप प्लीज उसको ध्यान से पढ़िए, समझिए, एंड अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप तुरंत बता दीजिए। इसमें एक चीज मैं आई विल एडमिनिस्ट्रेटिवली आई विल टेल यू, हम लोग जो है आप लोगों का परफॉर्मेंस भी मॉनिटर करेंगे एंड यू विल हैव टू डू, आपको डेली रिपोर्टिंग भी करनी होगी, उसका भी मैकेनिज्म डेवलप होगा, रिपोर्टिंग फॉर्मेट भी डेवलप होगा। सो रिमेंबर दिस कि आप जो है
ड्यूटी के लिए आ रहे हैं. If we see that if you neglect these duties, then it will be our duty to report back to the concerned authorities in India about your performances. तो अगर हमें कहीं मेजर लैप्स ऑफ ड्यूटी लगा, अगर हमें जो है इसमें कंप्लीट नॉन कोऑपरेशन भी दिखा, तो वी विल डेफिनेटली रिपोर्ट. देयर आर टू थिंग्स टू इट. हम आपको जो है एनेबल करेंगे, हम आपको पूरी तरह जो है सपोर्ट करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी रिक्वायर ऑफ यू इज योर ओन परफॉर्मेंस आल्सो, कि आप जो है इसको टोटल डिवोशन से लीजिए. जो है गवर्नमेंट देख रही है, इस ड्यूटी के साथ आपको ऑफ कोर्स मौका मिल रहा है यहाँ पे आके जो है खुद रिचुअल्स में भी जो है साथ में रहने का, तो वो भी एक एडेड एडवांटेज है. बट एट द एंड ऑफ द डे आप एक ड्यूटी के लिए आ रहे हैं, तो जैसे हम जो है गवर्नमेंट में ड्यूटी करते हैं अपनी, वही सेम ईमानदारी के साथ, वही सेम शिद्दत के साथ आपको यहाँ पे करनी होगी. और यहाँ पे जो है पर्टिकुलरली इट विल बी, मैं जो है कोई आपको सिर्फ रोजी प्रॉमिसिंग पिक्चर नहीं बताऊंगा. यहाँ पे टाइमलाइन जो है काफी स्ट्रेच रहेंगे. वी वर्क राउंड द क्लॉक, हम 24/7 जो है यहाँ पे ऑपरेट करते हैं. सो इट मे बी टफ ऑन मेनी ऑफ यू, सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड, यू नो, बी फंक्शनली प्रिपेयर्ड. कोई भी आपको इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा चाहिए, जस्ट रीच आउट टू अवर ऑफिसर्स और स्टाफ एंड द डेप्यूटेशनिस्ट का आप इंतजार करेंगे. जी सर, जैसा कि सर ने बताया था कि जो हमारी ड्यूटीज़ है कि हम वहाँ डिफरेंट जो डेस्क होंगी उनके साथ कम्युनिकेट करके जो हमारे हाजी होंगे उनकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे. तो सर मैं ये चाहूँगा कि जो वहाँ पर डिफरेंट डेस्क होंगी और जो वहाँ पर हम जिन लोगों की, जिन अथॉरिटीज़ की हम वहाँ हेल्प ले सकेंगे, उसके लिए एक बहुत प्रिसाइजली कोई ऐसी बुकलेट टाइप की है छोटी सी, वो एक फ्लो चार्ट टाइप से हमें मिल जाए, हम फ्रेशर से सर, हम ताकि हम उस चीज़ का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाए कि हमें कौन सी चीज़ के लिए कहाँ जाना होगा. सर पहले हम समझ पाए सर उस चीज़ को थोड़ा सा. राइट. नो, जैसे मैंने बताया व्हेन आई एड्रेस्ड ऑल ऑफ यू कि हम आपके लिए जो है ये चेकलिस्ट एंड फंक्शनल इंफॉर्मेशन कंपाइल करके देंगे. दैट विल बी देयर. एंड इन मोस्ट केसेस आप लोग जो है डायरेक्टली फंक्शनल डेस्क के अंदर ही जो है रिपोर्ट करेंगे, in addition to having your separate desk also, but we will also create your role in a way कि एक fulcrum, एक content की तरह जो है, जो pyramid structure नहीं होता. आप जो है the nodes हैं जो हाजियों को connect करते हैं, आपके ऊपर के nodes जो हैं functional desk होंगे. So ये सब फ्लो चार्ट जैसे आप बता रहे हैं हम बना के आपको देंगे, so that you understand quite clearly कि क्या रोल है, कहाँ आप इस एंटायर आर्किटेक्चर में कहाँ फिट हो रहे हैं और कहाँ का क्या क्या मालूमात आपको होनी चाहिए. इन एडिशन टू दैट हम चेकलिस्ट पे एक बेसिक चेकलिस्ट भी बनाएंगे, बट जैसे मैंने बताया कि चेकलिस्ट जो है एग्जॉस्टिव नहीं होगी. बियॉन्ड दैट चेकलिस्ट आल्सो यू विल हैव ड्यूटीज, बट वी विल ट्राई एंड गिव यू मैक्सिमम इंफॉर्मेशन. दैट विल बी देयर. एंड लाइक आई टोल्ड यू, वी वुड एक्सपेक्ट कि आप थोड़ी सी इनिशियल डेज में ट्रेनिंग भी कर लीजिए. We will try and have that training, practical training arranged in batches. Once the pilgrims retire to bed, तो आपको लेके जाना है. For example, मीना वाला एरिया आप लोगों के लिए बहुत न्यू रहेगा. तो मीना वाले एरिया में बिफोर द कोर हज पीरियड हम आपको वहाँ पे लेके जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि by that time all these camp numbering, pole numbering, gate numbering, everything will be done. तो उस टाइम पे आप जाके देख लें, आप लोगों को भी क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कौन सी कैंप कहाँ पे है, कौन से गेट से निकलना है, कैसे जाना है. सो दिस विल हेल्प यू गाइड योर हाजीज बेटर. जी नेक्स्ट क्वेश्चन. हेलो अस्सलाम वालेकुम सर. आपने बहुत ही तफसील से सारी बातें बताई और काफ़ी अच्छा सा लगा और हम इस पूरे प्रकरण को अच्छे से समझ लिए. बस एक सवाल था हमारा सर कि जैसे हम पहले खादिमुल हुज्जाज जाते थे तो हमारी जैकेट पे पीछे खादिमुल हुज्जाज लिखा रहता था, अब जो SHI हो गए तो क्या हमारी जैकेट्स पे SHI लिखा रहेगा? So like
like I'm telling you, ये एक जो है, ये एक shift of nomenclature जो हुआ है, this has been done after careful deliberation and thought only, based on जो feedback मिला था हमें previously, based on our own observations. तो be rest assured कि जो है, जैसे हम आपने PPT में देखा कि KUH desk को अब हम SHI desk जैसे बोलते हैं, तो we will have the nomenclature being replaced everywhere else. So good afternoon, sir. Thank you for this comprehensive presentation, sir. It covered all aspects. Sir, I have a question with regard to the Hajj delegation. Earlier, civilian officers, civil administration officers and officials used to be taken on deputation, but over the last couple of years, this has been stopped. Armed forces personnel are being taken for deputation. Now this has been opened up for the central service people. But sir, what we have observed is Hajis generally are more comfortable with the local, officers and officials. Is there a plan to open it up again for the civil administration, and also opening this up only for the armed forces personnel gives an impression that Hajis actually require disciplining. So it's a purely administrative work which was being done very comfortably and conveniently by the civil officers and officials who would come from state services as well. So can't we go back and make it more inclusive and include state service officers and officials for these deputations, sir? Thank you. So I think this question of should be directed to my colleagues from Ministry of Minority Affairs. So I'll leave it to them in case anyone is there. I think they are better placed to answer this question. That is beyond the remit of the consulate.